Hello, everyone, and welcome to the Cricket Castaway. So, the first week of IPL is behind us, and we have had a lot of amazing matches. This first week of IPL has been full of action-packed drama, last over finishes, highest scores being broken, and overall a lot of fun. So we decided why not to have some fun ourselves with the first week of IPL, and I'm joined by Divyansh and Maulik. And what we are gonna do is quite interesting here. Is that we have figured out a name of 11 or 12 players which we think have stood out in the first week of IPL. So we're gonna play a little game of ours here and try and narrow those players down to a list of, let's say, 4 or 5 players who have really stood out in the first week of IPL. And then what we're gonna do is we're gonna preview the upcoming week 2 of IPL, and what are the things that we are expecting to happen and what are the things that we are excited about in the coming week of IPL. So yeah, I think to start the show, Divyansh, what do you want to say about the upcoming week and the little game that we are going to play here right now? Yeah, so the upcoming week looks very exciting, as good as it gets, and with the onset of the tournament, week 1 was a very thrilling one to watch, and expectations are the same for the upcoming week as well, and like it would bring another chapter in the IPL's history, like we saw that home games were mostly defended right till now, and what's going to be different in the upcoming week? Can the curse of away games would be broken, or the streak would continue? These are the things we will be watching for, and also for individual teams like Gujarat Titans, Delhi Capitals, would they be able to break their shackles? So all these things are a good anticipation points to look out for. Also, not last but not the least, when would Mumbai start winning their matches? So the two are already gone. So there is an eager wait to for Mumbai to start winning, because we all know they have the habit of starting late, but they always make their way to the top four. So there is also that one. Yeah. या मौलिक पहला वीक आईपीएल का निकल चुका है, सेकंड वीक आने वाला है। आपको क्या लग रहा है कौन 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 से प्लेयर्स कौन कौन सी टीम इस सेकंड वीक ऑफ आईपीएल में एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगी और बाकी टीम्स को बताएंगी कि नहीं, इस बार के क्वालिफायर्स हम हैं आपने। तो लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहा है, एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सिलेक्ट किए हैं, हम लोगों ने भी वर डिस्कसिंग अबाउट देम, और बहुत ही एक्साइटिंग वीक के बाद अब जो नेक्स्ट फेज पे हम जाने वाले हैं, तो मैचेस बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी हैं, और कुछ टीम्स के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में कैप्टेंसी चेंज हुई है, हम सबको पता है, और अभी तक एक भी मैच नहीं जीती है। तो इस वीक नेक्स्ट वीक में हार्दिक पांड्या को समथिंग ही हैज टू कम अप विद एंड स्टार्ट विनिंग द मैचेस, क्योंकि फैंस का इतना प्रेशर ऑलरेडी हार्दिक पर आ चुका है, और रोहित को जब से कैप्टेंसी से हटाया गया है तब से और भी ज़्यादा प्रेशर है पांड्या पर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड लास्ट वीक में एक प्लेयर है जिसका नाम है मयंक यादव। तो अभी येस्टरडे ही just did a brilliant brilliant bowl. He bowled very well yesterday, और 21 साल का लड़का है, मतलब he is just of 21 years of age, और कोई बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उसे। तो एक ऐसा बंदा जो फर्स्ट टाइम आईपीएल में डेब्यू किया और आते ही 156 किलोमीटर पर आवर की बॉलिंग डाल रहा है, और शिखर धवन जैसे प्लेयर को वो मतलब अपनी बाउंसर पे बीट कर रहा है पेस से।
तो बहुत ही देखकर अच्छा लगा, और लगा कि अब इंडिया के पास भी ऐसे बॉलर्स आ रहे हैं जो हम पहले पाकिस्तान की तरफ से देखा करते थे कि वसीम अकरम, शोएब अख्तर एंड ऑल। तो अब इंडिया के पास भी पेस बैटरी बहुत अच्छी है, और बुमराह के बाद लग रहा है कि ही इज द नेक्स्ट बिग फाइंड फॉर इंडिया। या ओवर टू यू निशांत। Oh, yeah, I think big words said here. So yeah, going to our little game that we are planning to have here is uh, हम लोगों के पास एक लिस्ट है of batsmen who we think have done really well in the first week of IPL. ऑलराउंडर्स अगेन जिन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ आईपीएल में हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा करा, और बॉलर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा करा। सो लेट्स दिव्यांश, व्हाट वी गोना डू इज कि हर एक लॉट में से बॉलर्स में से लेट्स पिक वन बॉलर जिसने काफ़ी अच्छा करा। ऑलराउंडर्स में से लेट्स पिक टू, एंड फ्रॉम बैट्समैन let's pick two. But yeah, Yes. we'll start talking about them individually first. So मुस्तफिजुर रहमान, दिव्यांश, पहला गेम आरसीबी वर्सेस चेन्नई, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था, आईपीएल का ओपनर था। किसी को पता नहीं था चेन्नई की टीम कैसे परफॉर्म करेगी, पिच कैसे बिहेव करेगी, और ऐसे में जब सीएसके को किसी बॉलर की ज़रूरत थी टू पुट हिज हैंड अप एंड से दैट नो दिस इज़ माय डे टुडे, आई एम गोना विन दिस गेम फॉर यू, मुस्तफिजुर रहमान ने अपना हैंड पुट अप करा और चेन्नई को विक्ट्री दिलाई। कैसा लग रहा है उनका स्टार्ट ऑफ द सीजन, और डू यू थिंक ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द बॉलर ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ आईपीएल? यस डेफिनेटली निशांत, मुस्तफिजुर ने बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट लिया है। इनफैक्ट हम आपस में मजाक भी कर रहे थे कि वी बोथ डिडंट काउंट हिम इन ड्रीम 11 एंड he outperformed every bowler from both the sides. So Mustafizur was a pleasant surprise, and CSK की जैसी हिस्ट्री रही है कि जो कहीं परफॉर्म नहीं कर पाता, they have a history of players who come in Chennai side and they start performing. So that's the kind of legacy that CSK brings with it. So Mustafizur Rahman is the latest example of that, and I think आगे भी जो स्लो पिचेस जहाँ पे भी रहती हैं, जहाँ पे इनटू द पिच बॉलिंग करनी होती है, मुस्तफिजुर रहमान वहाँ पे हमेशा इफेक्टिव रहेंगे, एंड आई थिंक he would be a overall good performer in this IPL. So yeah, that's my take on him. या मौलिक मुस्तफिज बांग्लादेश के बॉलर हैं, और बांग्लादेश में भी वही लो एंड स्लो पिचेस होती हैं जहाँ पे बॉल स्पिनर्स को ज़्यादा मदद करती है, थोड़ा सा पिच खुरदुरी टाइप की होती है, लेकिन उससे जो बॉलर्स अपना पेस निकाल के बॉलिंग करते हैं उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। और आई थिंक वही वही यही वही सोच के हाँ धोनी ने मुस्तफिजर को चेन्नई में लिया, और आई थिंक ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। व्हाट डू यू थिंक? हाँ एब्सोल्युटली, कि मुस्तफिजुर रहमान की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी स्लोअर डिलीवरीज भी हैं। कभी कभार तो ये देखना पड़ जाता है कि कौन सी डिलीवरी नॉर्मल पेस पर होगी, क्योंकि वो 6 में से 4 बॉल स्लोअर ही होती है। तो ऑब्वियसली बैट्समैन को अगर मैं बैट्समैन होता तो मैं उसकी स्लोअर डिलीवरी के लिए ही खेलता, कि क्योंकि मुझे पता है कि वो 6 में से 4 बॉल स्लोअर ही आने वाली है। हाँ, तो बट एब्सोल्युटली यू आर राइट कि स्लोअर डिलीवरीज बहुत अच्छी हैं, कटर्स बहुत अच्छी डालता है अंदर की तरफ आने वाली, और लेफ्ट हैंड जो बॉलर होते हैं वो ऑब्वियसली वो थोड़े डिफिकल्टी पेश ज्यादा करते हैं कंपैरेटिवली टू द राइट हैंड बॉलर्स, क्योंकि कम है और राइट हैंड बॉलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेफ्ट हैंड कम होते हैं। तो एक अलग निक लेके आते हैं लेफ्ट हैंड बॉलर्स। और साथ ही साथ जो साथ में इनके पथिराना है, जो कि मलिंगा के जैसा उनका काफी सिमिलर एक्शन है, तो उनको भी काफी ज्यादा मतलब सपोर्ट रहता है मुस्तफिजुर रहमान के, क्योंकि कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स हंट इन हंटिंग साथ पैक्स। साथ Facts. Yeah. हंट इन पैक्स। तो वो काफी अच्छा रहता है, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। पतिराना भी बहुत अच्छी स्लोअर डिलीवरीज भी डालते हैं और यॉर्कर्स भी बहुत अच्छी डालते हैं, और उन्हें देख के मलिंगा की याद आती है, तो बहुत अच्छा है। Secondly, for me, as I've already said कि मयंक यादव, मैंने I was too excited for him कि मैंने क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही मयंक यादव के बारे में, लिस्ट आने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि नो नो बॉलर्स नो का नो, नाम गो अहेड।
Go ahead. बॉलर्स का नाम आते ही मेरे को बस कल आई वाज टू एक्साइटेड टू वॉच हिम, मयंक यादव। मतलब देयर इज अ स्टैट कि जब मयंक यादव ने फास्टेस्ट डिलीवरी डाली थी 156 किलोमीटर पर आवर, तो बैट्समैन के पास ऑलमोस्ट 0.5 सेकंड था रिएक्शन टाइम। मतलब 0.5 सेकंड हम्म, रिएक्शन टाइम कितना कम होता है किसी भी बैट्समैन के लिए खेलना, तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर साथ की साथ मयंक यादव अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा स्लोअर या फिर कटर्स डिलीवरी ऐड कर लें, तो आई होप कि उनके पास ऑलरेडी होंगी, बिकॉज इन द यस्टरडेज मैच शॉर्ट बॉल्स ही और बाउंसर्स ने ही सारा काम कर दिया, तो ऑब्वियसली कटर्स की या स्लोअर डिलीवरीज की जरूरत नहीं पड़ी। बट ऑब्वियसली उनके पास होंगी, उनकी तरकश में ये तीर भी होंगे जो आने वाले फ्यूचर में आईपीएल में कुछ मैचेस में हमें देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द circumstances of the match. Over to yeah. you, Nishan. Divyansh, what do you think about Mayank Yadav? डेफिनेटली, जैसा कि मौलिक ने कहा कि यस, ये क्वेश्चन पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मयंक यादव से पूछा गया था कि डू यू हैव अदर वेरिएशंस एज वेल, और वर यू थिंकिंग ऑफ यूजिंग स्लोअर वंस एज वेल इन योर स्पेल। सो मयंक यादव ने यही रिस्पॉन्ड किया था कि यस, आई हैव अ स्लोअर डिलीवरी एज वेल, बट क्योंकि पहला ओवर जैसा गया, तो conditions were very supportive of fast bowling, short pitch bowling. So the captain asked him to keep bowling on that line only. So that's why we didn't see any kind of slower ones, slower Yorkers or slower bouncers. But definitely Mayank Yadav has all those. And मुझे लगता है कि under the leadership, agar if he gets picked up in the Indian squad, even in a you can say squad of 18, top 18, and then he spent some time with Bumrah and all, he would groom very fast. So abhi jo bhi hai, it's a good talent reserve to have, and uh, he just needs some mentorship in terms of how to bowl at international level. So Yeah, बहुत ही promising start I है think मयंक का। I think यही हाँ, reason है. This is the reason why we love IPL so much, because 20 20 लाख में Mayank खरीदा Yadav just हाँ है। 20 लाख में खरीदा है लखनऊ ने। हाँ 20 लाख देख, में खरीदा है लखनऊ ने। और इस लड़के का हम लोगों ने कुछ नाम नहीं सुना था। जैसा मौलिक ने बोला कि डोमेस्टिक में ज़्यादा इतना सर्किट पे खेला नहीं है, तो एकदम से एक तरीके से अननोन क्वांटिटी ही रहे हैं। kudos to the scouting system of Lucknow, that they found this gem. तो I think कि अब now that he has won one game single-handedly for Lucknow, a lot more players will start paying attention to him because he is genuinely quick. He has pace to burn, और बैट्समैन को स्विंग पे बैट्समैन आउट ज्यादा होते हैं, लेकिन स्विंग से बैट्समैन को डर नहीं लगता। डर रियल जेन्युइन पेस से लगता है, जब आपको जैसे मौलिक ने बोला कि बैट हिलाने का टाइम नहीं मिल रहा है और बॉल निकल के जा रही है छू के। और प्लस आईपीएल में इस बार 2 बाउंसर का लॉ भी आ गया है, विच इज Yeah, which is very helpful for the bowlers, because एक बाउंसर से आप कभी ना कभी द पेसर फील्स शॉर्ट चेंज्ड कि यार एक ही बाउंसर है मेरे पास, और अगर वो निकल गया तो देन यू जस्ट हैव द ओनली रिलायबल मींस इज द यॉर्कर। यॉर्कर, और करेक्ट। यॉर्कर का एग्जीक्यूशन इज वेरी टफ, ओनली फ्यू प्लेयर्स हैव बीन एबल टू क्रैक दैट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्लोअर फुल टॉस बन के रह जाती है या फिर वाइड हो जाती है। तो देन उस चीज को ओवरकम करने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, जो नया रूल आया है 2 बाउंसर का। तो दैट्स वेरी गुड टू हैव, एंड इसने और कॉम्पिटिटिव बना दिया है गेम को, जो कि गेम को वन साइडेड होने लगा था बैट्समैन की तरफ। बैट्समैन बैट्समैन की तरफ। राइट। और सिमिलरली जैसे कि हम मयंक यादव की बात कर रहे थे कि स्लोअर वंस और कटर्स का यूज, तो वो हमारे थर्ड बॉलर जो है इस लिस्ट में, हर्षित राणा, ही इज आल्सो अ यंग न्यू बॉलर फ्रॉम आरसीबी साइड। तो उन्होंने इतना एफिशिएंटली यूज किया है स्लोअर बॉल्स का।
सो इनफैक्ट ग्लेन मैक्सवेल को भी उन्होंने इसी पे चकमा दिया था। और नो सॉरी, ग्लेन मैक्सवेल को नहीं, बेसिकली जब केकेआर से मैच हुआ था तो सुनील नारायण और ड्रे रस को भी उन्होंने परेशान किया था। तो दोनों ही डेथ बॉलिंग और पावर प्ले बॉलिंग दोनों में ही इक्वली इफेक्टिव रहते हैं हर्षित राणा। जो हर्षित राणा को फेम जो मिला है वो लास्ट ओवर जो उन्होंने क्लासन को डाला था, सिर्फ 7 रन चाहिए थे एसआरएच को जीतने के लिए। फर्स्ट मैच था ईडन गार्डन्स में केकेआर वर्सेस एसआरएच, और वहां पे जब सबको लग रहा था कि क्लासन बहुत इजीली ये मैच फिनिश कर देंगे 3 बॉल में ही, वहां पे हर्षित राणा ने बहुत ही क्लेवर यूज किया कटर्स और स्लोअर वंस का, और उसी की वजह से केकेआर वो मैच डिफेंड कर पाया। अदरवाइज वो मैच कंप्लीटली जा चुका था एसआरएच के हाथों में। तो दैट्स व्हाट मेड हिम फेमस। तो ही इज अ रियल गुड, you can say, a user of this cutters, the slow स्लोअर bouncers, डिलीवरी, स्लोअर बाउंसर्स। slow deliveries। तो बहुत ही अच्छे वेरिएशंस है उनके पास। तो फ्यूचर में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड कमिंग टू आवर लिस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स, तो रचिन रविंद्र के बारे में मौलिक आप व्हाट डू यू से कि रचिन रविंद्र का जो ऑनसेट हुआ है चेन्नई में, हाउ डू यू सी दैट? इट्स रियली वंडरफुल टू वॉच रचिन रविंद्र। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन में एक अलग ही एक उनका फ्लो जो होता है, जो हम सौरव गांगुली की बैटिंग में देखा करते थे, और देखने में बहुत मजा आता है। शिखर धवन, किसी भी लेफ्ट हैंडर को अगर आप देखेंगे तो वो अलग एक उनका एक अलग ही फ्लो होता है खेलने का, और अलग ही जिस तरीके से लेफ्ट हैंड का बल्ला चलता है तो बहुत मजा आता है देखने में। और रचिन रचिन रविंद्र जो है ये इंडियन ओरिजिन के प्लेयर हैं, और फिलहाल न्यूजीलैंड से खेलते हैं, और बहुत ही यंग हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। और आईपीएल में भी लास्ट गेम्स में बहुत ही अच्छा दिखे हैं, और आई रियली होप ही डज वेल इन द फ्यूचर। डेफिनेटली, जैसा कि आपने बोला, वो नाम भी उनका वहीं से आया। राहुल द्रविड़ और सचिन के फैन थे इनके फादर, तो उन्होंने दोनों का यूज करते हुए रचिन नाम रखा है इनका। एंड डेफिनेटली जो एलिगेंस है राहुल द्रविड़ का और जो क्लास है सचिन का, दोनों को ये ब्यूटीफुली अमेलगमेट करते हैं अपनी बैटिंग में। और जो एलिगेंस होता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का, वो जैसा कि बिल्कुल सही आपने बोला मौलिक, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। साथ में ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्पिन प्लेयर भी हैं, जो कि सीएसके की पिचेस के लिए, चेपॉक के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। एज द टेम्परेचर गोज अप अप्रैल में, मिड अप्रैल में एंड मई में, तो बहुत ही इफेक्टिव स्पिन ऑप्शन भी ये साबित होंगे। तो जडेजा के साथ बहुत अच्छा ये एक अपना कॉम्बिनेशन बना के बहुत ही बिल्कुल। इफेक्टिवली स्पिन डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकते हैं सीएसके का। व्हाट डू यू से निशान? Yeah, I think Rachin Ravindra is one of the finds of IPL this year, along with Mayank Yadav. I think इन्होंने वर्ल्ड कप में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। उसके बाद न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में भी आई थिंक स्कोर्ड 100 और सो। एंड यहाँ पे पहले 2 मैच में आईपीएल के डेवन कॉनवे की कमी बिल्कुल खलने नहीं दी है सीएसके को। तो आई थिंक दिस गाय हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। बैटिंग टेक्निक बहुत बहुत साउंड है, कोई अनयूजुअल मूवमेंट नहीं है, एक अच्छे स्टांस से खेलते हैं और पावर भी है शॉट्स में। सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट मेक अप अ गुड परफॉर्मर फॉर आईपीएल फॉर इयर्स टू कम। अगर अगर इनका करियर इंजरी फ्री रहता है, सो आने वाले टाइम में आई थिंक रचिन रविंद्रा को बहुत कुछ करते हुए हम सर्किट में देखेंगे, और ये नाम काफ़ी फेमस रहने वाला है आने वाले सालों में। बट या फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ आईपीएल आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द पिक्स फॉर द ऑलराउंडर डिपार्टमेंट। दो हमने इनका बॉलिंग में पहले वीक में पहले 2 मैचेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देखा है, बट एज यू सेड दैट as April moves on to May and the pitch starts heating up, his uh, his spin bowling will come really handy. So yeah, I think all in all, Sachin Ravindra has a very strong start to the IPL.
मूविंग ऑन टू सुनील नारायण एंड आंद्रे रसल, दोनों केकेआर को बिलोंग करते हैं, तो इट मेक सेंस इफ वी टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम टुगेदर. सो सुनील नारायण ने जो अभी लास्ट मैच में ओपनिंग परफॉर्मेंस दिया है, ही रिमाइंडेड अस ऑफ द ओल्ड सुनील नारायण, जो कि रेगुलर ओपनिंग किया करते थे अराउंड 2012 से 2016 तक, जहाँ पे केकेआर वाज अ पीक परफॉर्मिंग टीम. तो बहुत ही जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस था. एंड आई थिंक आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? I think Sunil Narayan or Maulik, if you have the same opinion, you can echo it. I think सुनील नारायण का ऐसा है कि हम लोगों के सबके लोकल क्रिकेट टीम्स में और हर जगह एक ऐसा लड़का ज़रूर होता है जिसका तुम्हें पता है कि इसको अगर कोई सही सी बॉल फेंकोगे तो ये आउट हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने वो सही सी बॉल नहीं फेंकी तो वो लड़के में इतनी पावर भी है कि वो बॉल को स्टेडियम के बाहर फेंक देगा. तो अगर तुम उस लड़के को ये उसकी एबिलिटी जानने के बाद भी वो सही बॉल नहीं फेंक रहे हो और फिर वो रन मार रहा है, सो दैट्स ऑन यू, इज व्हाट आई फील विद सुनील नारायण. सुनील नारायण इज नॉट एन ओपनर, हैज नेवर बिन. एक आईपीएल में हर सीजन 2 से 3 मैच में वो रन बना देते हैं. he's a legend IPL bowler and a gun bowler, but as a batsman I don't think he's that great. But yeah, अगर उनको सही डिलीवरीज नहीं डालोगे तो वो बैट घुमाने में बहुत माहिर हैं और वो बैट घुमा घुमा के रन बना देते हैं. बट या ये फॉर वीक वन ऑफ द आईपीएल इन्होंने एक मैच सिंगल हैंडेडली जिता दिया है विद बैट एंड बॉल. So it's fair enough to keep at least Sunil Narayan in our picks for all-rounder. Yeah, Maulik. और यही रोल सुनील नारायण को दिया भी गया है मैनेजमेंट के द्वारा कि यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड बल्ला चलाना है और शॉट्स लगाने हैं. तो ही कम्स आउट विद अ वेरी क्लियर थॉट ऑफ माइंड कि आके टीम का स्कोर जल्दी से ऊपर ले जाना है, रन रेट ऊपर ले जाना है, और विदाउट एनी प्रेशर वो आते हैं. उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि मैं ओपनिंग करने आया हूँ तो आई हैव टू प्ले लॉन्ग इनिंग्स और समथिंग लाइक दैट. तो वो आते हैं और कैरेबियन पावर है इनमें. और आंद्रे रसल में ऑब्वियसली जितने भी ये कैरेबियन प्लेयर्स होते हैं उनकी हिटिंग पावर बहुत ही अच्छी रहती है, पावर है इनमें भी. आंद्रे रसल भी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ही खेलते हैं और बहुत ज़्यादा हिट करते हैं बॉल को. कई बार तो बॉल की शेप भी खराब कर देते हैं, इतना मारते हैं लोग. तो अच्छा है. बट आई वुड लाइक टू सी सुनील नारायण मोर ऑफ अ बॉलर ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल क्योंकि ये जो ओपनिंग में इन्होंने जो जैसा भी खेला, तो ये आई डोंट थिंक कि हर एक मैच में वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि जो बाकी की टीम से उनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, ओपनिंग बॉलर्स हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ये हर एक मैच में इतना अच्छा कर पाएंगे. तो आई विल बी लुकिंग टू फॉरवर्ड कि ये बॉलिंग में भी इतना ही अच्छा करके दिखाएं, जो इनका एक नेचुरल प्ले है. तो वो मैं इनके लिए बॉलिंग को ही मानता हूँ. बैटिंग ठीक है, अच्छी कर रहे हैं आजकल, बट बॉलिंग में भी उतना ही अच्छा करें तो वंडरफुल. he'll be doing wonders for his team. Definitely. So yeah, Nishan, go on. Yeah, the next player that we were talking about was Andre Russell, since we thought कि इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में बात करें. I think Andre Russell is a game changer. बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी, पार, एवरीथिंग. He is one of the best players in IPL. और उनका खेलना केकेआर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इफ ही डजंट प्ले वेल केकेआर इज नॉट गोना विन. बट या पहले वीक ऑफ आईपीएल में आंद्रे रसल ने बॉलिंग से भी मैच जिताए हैं और बैटिंग से भी मैच जिताए हैं. सो दिस लुक्स लाइक अ रियली रियली गुड लॉन्चिंग पैड फॉर हिम. और अच्छा खेला है पहले दोनों गेम्स में रसल ने. तो अगर सुनील नारायण और रसल ऐसा ही कंटिन्यू करते हैं वीक 2 ऑफ द आईपीएल में भी, और परफॉर्मेंसेस इन दोनों से लगती रहती हैं, तो आई थिंक वीक 2 के ख़त्म होते होते भी केकेआर अपना टॉप 1 टॉप 2 का स्लॉट मेंटेन करके रख सकती है. मौलिक, योर टेक ऑन रसल? हाँ, माई टेक ऑन रसल इज कि रसल की जो बॉडी है, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, बट ही इज वेरी प्रोन टू इंजरीज.
क्योंकि लास्ट आईपीएल में और लास्ट आईपीएल्स में ये देखा था मैंने कि बहुत ज़्यादा उनको इंजरीज से उन्होंने मतलब कोप किया है, और आई होप कि दिस टाइम आंद्रे रसल फिट रहें और पूरा आईपीएल खेलें अच्छे से विदाउट एनी इंजरीज। बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग में भी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लंबे लंबे छक्के मारते हैं, हिट्स मारते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से इनकी फॉर्म चलती है। तो आई होप द बेस्ट फॉर हिम। Yeah. Definitely. Divyansh, your take on Russell? Yeah, so Russell is a asset to any team he goes into, and अभी देखा गया कि इस season में he's trying to re-establish the his destructive image that was kind of lost in the last season. So हमने देखा एक more than 200 का strike rate के साथ एक innings इन्होंने play किया, जो कि SRH के लिए deal breaker बन गया. SRH lost that match, and also he's doing good with the ball as well, bowling hard lengths, using his slower Yorkers. अभी तक 3 विकेट भी ले चुके हैं 2 मैचेस में. तो being an all-rounder, he is fulfilling his duties up to 100%. So yeah, he would be a great asset if he keeps doing like that for KKR. Yeah. आई थिंक ऑलराउंडर्स की जब बात होती है और रियान पराग की जब उसमें बात होती है, तो इस सीजन की स्टार्टिंग तक किसी ने भी रियान पराग को बिल्कुल भी रेट करा नहीं था. राजस्थान के पास रियान पराग पिछले 3-4 साल से हैं. वो उनको हर साल खिलाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, और रियान पराग कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते. और फिर हर सीज़न के एंड में यही बोला जाता है कि राजस्थान हैज़ अ टीम ऑफ 5 बैट्समैन एंड 5 बॉलर्स एंड रियान पराग. बिकॉज़ रियान पराग परफॉर्म उस लेवल पे नहीं कर पाते जिस लेवल पे उनसे उम्मीद करी गई है. बट फिर भी राजस्थान ने उनके ऊपर फेथ बरकरार रखा. जो टैलेंट वो नेट्स में देख रहे थे, उसके ऊपर अपनी आई पर फेथ रखा, और इस साल रियान पराग को फिर मौका दिया गया है. और इस साल फाइनली अब रियान पराग का ऐसा लग रहा है कि ही कैन बी द प्लेयर दैट वाज प्रॉमिस्ड टू अस इन द आईपीएल. बहुत ही अच्छे दोनों मैचेस खेले हैं. पहला मैच लखनऊ के अगेंस्ट काफ़ी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा. 2 रन थोड़े कम थे, लेकिन काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा. उसके बाद फिर दिल्ली के अगेंस्ट धागा ही खोल दिया, इतने रन मारे हैं. तो गुड टू सी रियान पराग डूइंग रियली वेल, स्टार्टिंग टू परफॉर्म टू हिज पोटेंशियल. मौलिक, आपका क्या कहना है जस्ट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट, कि जब वो रन नहीं लग रहे थे तब भी उनके साथ परसिस्ट करना, और फिर अब रन लग रहे हैं तो वो पूरा मैनेजमेंट का डिसीजन 2-3 साल का जस्टिफाई हो जाता है. बहुत लंबे टाइम से रियान पराग राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, और उतने ही लंबे टाइम से रियान पराग परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे. और शायद ये बात रियान पराग को भी फील कहीं ना कहीं हो रही थी, क्योंकि आई हैव सीन हिज सम ऑफ हिज इंटरव्यूज, तो जहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी कि रियान पराग के पास ऐसा क्या है जो राजस्थान को दे रहा है और राजस्थान उसको बाहर नहीं कर रही है. मतलब व्हाट काइंड ऑफ बैकअप ही हैज, कि ही स्टिल विद द टीम एंड ही स्टिल कंटिन्यूअसली नॉट परफॉर्मिंग. तो फाइनली रियान पराग के लिए दिल्ली के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें एक मौका आया और उन्होंने परफॉर्म किया. तो बहुत टाइम के बाद, मतलब शायद फर्स्ट टाइम मैंने देखा होगा रियान पराग को कि इतना लंबा इनिंग्स खेली और इतना अच्छा स्कोर किया, इतने अच्छे रन रेट के साथ स्कोर, स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया. तो बहुत ही अच्छा लगा. और ही हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड फील्डर. फील्डिंग उनकी अच्छी रही है हमेशा से, और बहुत अच्छे कैचेस लिए हैं, डाइव्स लगाते हैं डीप ऑफ द फील्ड में. बट हाँ, बैटिंग के ऊपर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं. बट क्या वो इस इनिंग्स के बाद भी अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे और क्रिटिक्स हैं उनको समझा पाएंगे कि उनकी टीम में जगह है और हमेशा से रहेगी. तो ये देखने वाली बात होगी. बट एज फॉर नाउ, ब्रिलियंट नॉक बाय रियान पराग. हैट्स ऑफ टू हिम. Definitely. Yeah.
Nothing much to add to what Nishant and Maulik already stated. Great, promising performer from with the bat and carrying on with his domestic form. बस देखना यही होगा कि कंसिस्टेंसी को क्रैक कर पाते हैं या नहीं. Otherwise, he is doing good as of now. So yeah, I think this was our all-rounders section, and now we move to the heavy lifters of the IPL, the batsmen. That's where all the money is. That's where all the glory is, and the glory hunters are very familiar names of IPL in the first week. It's Heinrich Klaasen, it's Virat Kohli, it's Tilak Varma, and it's Nicholas Puran, who have batted out of the skin. I think let's start from what say Virat Kohli first and go to Tilak Varma and then Heinrich Klaasen निकोलस and पूरन। Nicholas Puran. So Yeah. yeah, Divyansh, किंग कोहली तो किंग कोहली ही हैं और दिखा दिया है सबको कि 4 महीने का ब्रेक था और टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं खेले थे लेकिन जब बैंगलोर में आके वो जर्सी पहन के मैचेस खेलना शुरू करा है तो लग रहा है ओनली प्लेयर हु इज इन फॉर्म फॉर बैंगलोर राइट नाउ इज विराट कोहली अपार्ट फ्रॉम हिम एवरीबडी एल्स इज सर्चिंग Yes, definitely, definitely. Even Faf Maxwell and Cameron Green are also looking for that consistency that Virat is displaying right now. And yes, all the critics that were talking and that were making noise outside of the ground, their mouths have been shut for good. And Virat Kohli has again proved that even if you are not that flamboyant cricketer, you're not doing those cheeky experiments with your batting, still with the traditional technique also you can prove your mental with your performance, and he has done exactly the same. और बस अब एक इनिंग्स वैसी चाहिए जिसमें he crosses that 200 strike rate barrier, and that will be good enough to convince everyone that if required he can play that fast as well. Otherwise, there's no doubt that he's performing. He's the best batsman from the RCB side at this moment. Back Yeah, to you, Nisha. Malik, what would you say to say for Virat Kohli? King Kohli, Virat Kohli, one of the greatest batsmen of all time, और दुनिया के शायद वन ऑफ द टॉप बैट्समैन में से एक है। तो तीनों ही फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, वेदर इट इज टेस्ट, वनडे और T20। तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि जहाँ पे इन्होंने प्रूव ना किया हो अपने आप को। एंड सेम गोज विद द आईपीएल में बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी बैटिंग लाइनअप केवल इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, क्योंकि बाकी जितने भी बैट्समैन हैं दे आर नॉट एबल टू कम अप विद द आंसर्स। तो और विराट कोहली की ये गेम प्ले भी है कि ही प्लेज अ मोर ऑफ एन एंकर रोल। तो वो अपने ही एक स्टाइल से खेलते हैं, अपने ही एक स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि जब उनके साथ जो खेल रहा हो वो थोड़ा तेज खेले, ऐसा मुझे लगता है। इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। तो वो चाहते हैं कि वो एक लंबी इनिंग्स खेलें और एक तरफ से एक एंड पे वो टिके रहें। तो बट बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, नो डाउट। इतनी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और जो उनका ब्रेक था आईपीएल से पहले, काफ़ी लंबा ब्रेक पे थे वो, फैमिली के साथ हॉलीडे पे थे। तो पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि जब वो हॉलीडे पर थे तो ही एंजॉयड अ लॉट बिकॉज नोबडी यू नो किसी को पता नहीं चला कि ये कौन है। मतलब ही वेंट टू सच अ प्लेस जहाँ पे सब लोग उन्हें विराट करके बुला रहे थे, बट नोबडी न्यू कि ये कौन है। तो sometimes these stars don't want to be stars, they just want to be a natural normal person and enjoy life. And same goes with his cricket also। अभी लगता है देख के कि अब वो क्रिकेट खेलने आए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ फ्लैम्बॉयंट या स्टारडम नहीं है, नॉर्मल खेलना चाहते हैं और अच्छा कर रहे हैं। या निशांत? या आई थिंक दोनों मैचेस में विराट कोहली ने काफ़ी अच्छे रन बनाए और इस समय बैटिंग ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में भी टॉप पर हैं। तो या नो डाउट
विराट कोहली इज स्टिल द किंग। और वो जो स्टार्क को शॉर्ट आर्म जैब मारा था, जो छक्का मारा था, आई स्टिल कांट फॉरगेट इट फ्रॉम द प्रीवियस गेम। तो I think Kohli has started the IPL really strong, और आई थिंक 600-700 का सीजन कहीं नहीं गया। आई थिंक कोहली विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स ऑफ दिस ईयर्स आईपीएल। और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग कर रहे हैं। मुझे उनके स्ट्राइक रेट का कभी ज़्यादा चिंता रहती नहीं है, बिकॉज एज यू सेड, इफ़ ही इवन इफ ही होल्ड्स वन एंड फॉर लेट्स से 10-15 ओवर्स, जहाँ पे वो 150 के स्ट्राइक रेट से स्ट्राइक कर रहे हैं, और उनके अराउंड जो बंदे हैं वो थोड़ा 170-180 खींच रहे हैं, देन दैट्स रियली गुड फॉर एंड हेल्दी फॉर द टीम। सो आई थिंक विराट कोहली is gonna have a huge say in this year's IPL. Moving from Virat Kohli to Tilak Verma, अनदर फाइंड ऑफ द आईपीएल। मुंबई में ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में एक के बाद एक ऐसे यंग इंडियन स्टार्स आते ही रहते हैं, जिनको किसी सिचुएशन का कोई डर नहीं है, जिनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन वो सब जाते हैं स्टेडियम में और देखते हैं अपने अराउंड 20-25 हज़ार बंदे उनको बैटिंग करने के लिए देखने आ रहे हैं, तो वो उन्हें एंटरटेन करते हैं। और तिलक वर्मा इज आई थिंक वन सच प्लेयर जो कि काफ़ी यंग है, बट ही हैज़ दैट एक्स फैक्टर अबाउट हिम कि वो एक मैच अपने हिसाब से चला सकते हैं और अपनी तरीके से निकाल के लेके जा सकते हैं। उन्होंने दोनों मैचेस में काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है। मुंबई दोनों मैचेस हारा है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा दैट 277-278 क्रेजी गेम अगेंस्ट हैदराबाद, जिसमें मुंबई के पास कोई चांस नहीं था मैच जीतने का, लेकिन तिलक वर्मा आए और एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे मुंबई को लेके पहुंच गए थे, जीत के ऑलमोस्ट दरवाजे तक खींच के ले गए थे। तो दिव्यांश, टेम्परामेंट, हिटिंग एबिलिटी एंड फिनिशिंग कैपेबिलिटीज सब इस नए लड़के में दिख रही हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट तिलक वर्मा? बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है तिलक वर्मा। और जैसा कि आपने बोला कि what he brings to the table is plenty of talent, plenty of intent, along with fearlessness. So these are the three key elements that define Tilak Verma's batting. He is not shy or you can say nervous about the crowd he's playing in front of. He is completely fearless, and he comes with a plenty of intent backed by talent. So these are the three things that makes him a successful Mumbai franchise player. And वो बहुत अच्छे से कैरी करते हैं ब्रांड मुंबई को, जैसा कि लाइक ही इज वॉकिंग इन द शैडो ऑफ सूर्य कुमार यादव, सो ही इज फॉलोइंग द सूट एंड टेकिंग द मेंटल अहेड फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। उसी स्टाइल की वो बैटिंग करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ getting out early, or how he looks playing those kind of shots, or how risky is it. He doesn't think of those factors and just goes ahead and plays his natural game. So a very good find for Mumbai Indians, and uh, at least for the next 5-7 years he will be the core of Mumbai Indians, so that's for sure. या मौलिक, आप Great, great, तिलक वर्मा great को कैसे batsman. रेट करते हैं? Yeah, I absolutely agree with Divyansh, as he said that very fearless batsman, and plays like try to be following Surya Kumar Yadav. और सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहे हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्लेयर है जिसको मुंबई मिस कर रही है जिसका नाम सूर्य कुमार यादव है, बिकॉज तिलक वर्मा हैज प्लेड रियली गुड इनिंग्स और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, fearless हैं, and I hope the best for him. And moreover, one thing more I have to add to it कि मुंबई इंडियंस में थोड़ा सा ये चल रहा है आजकल कि the team has been divided into 2 groups. तो I don't know how true is that. थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशंस आती रहती हैं सुनने में, बट तिलक वर्मा जो है ऐसा सुनने में आता है कि he completely backs up हार्दिक पांड्या, and with this the wicket keeper of Mumbai Indian, ईशान Mr. किशन. Ishan Kishan. So really good to watch both these players. Ishan Kishan is also a very good player, very young player,
and I hope the best for him in future. Yeah. I think moving from Tilak Verma to Nicholas Puran, again a very good start of IPL for Nicky P. बहुत ही अच्छे रिदम में दिख रहे हैं. पहला मैच लखनऊ का राजस्थान से था, इन राजस्थान से होम ग्राउंड, और निकोलस पूरन मैच को ऑलमोस्ट लखनऊ के विनिंग डोर तक ले गए. एंड में जाके वो आउट हुए और उसके बाद ही वो मैच बदल गया और वहां से फिर राजस्थान जीता. और उसके बाद फिर सेकंड मैच एट लखनऊ इन द होम ग्राउंड अगेंस्ट पंजाब, काफ़ी 21 बॉल पे 42 या 21 बॉल पे 43 रन की काफ़ी तूफानी पारी खेली, और कैप्टन भी करा साथ में लखनऊ को उस गेम में, क्योंकि केएल राहुल फर्स्ट हाफ के बाद इम्पैक्ट सब चले गए थे. तो काफ़ी अच्छा पहला वीक रहा निकोलस पूरन के लिए. एंड या लॉन्ग मे इट कंटिन्यू फॉर हिम एज वेल एज फॉर एलएसजी. दिव्यांश, निकोलस पूरन का परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ आईपीएल कैसा लगा आपको? बहुत ही जबरदस्त. whatever role he has been given by the team management and KL Rahul, he has fulfilled up to the T. And Nicholas Puran is a player जिसको आप किसी भी situation में भेज दो, irrespective of the kind of pressure he is going into, he plays his natural game. And more or less हमेशा ही वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि he is a finisher as well as a match winner. So that's what we can say about Nicholas Puran. Yeah, Yeah. I think there is an issue with the connection for Malik, so probably he'll just join us. So yeah. moving on to Heinrich Klaassen. I think the batsman of the IPL. I think the batsman of T20 circuit all around the globe. I don't think there is anybody better than this guy at this point of time in the circuit. And he has started this IPL like it's just nothing. Like he's playing in his own backyard, and no bowler can seem to get a read on Heinrich Klaassen. What do you think about this king or Nawab of Hyderabad? Yeah, so Heinrich Klaassen is a force to reckon with all around the leagues of the entire world. He has been the find of this nature of cricket, and IPL T20, and in general T20 is the format that suits Heinrich Klaassen the most, and that's what we can say about it. And he's the greatest player right now who is playing in the T20 leagues all around the world. Everybody fears him. Every bowler has a target in his mind, how to break the defense and how to get past Heinrich Klaassen's destructive batting. So he's the player to watch out for all the IPL teams. So yeah. Uh, Everything is less. Whatever we say, it's less right now for Heinrich Klaassen's batting. Yeah, I think similarly to what you said. बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इतने अच्छे फॉर्म में स्टार्ट करा है हेनरिक क्लासन ने इस बार की. मज़ा आएगा इनकी बैटिंग देखने में. अभी अगला मैच गुजरात से होने वाला है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत बूम बाम और फोड़ फाड़ मचाने वाले हैं हेनरिक क्लासन. Yeah. अलग अलग ऑरा लेके चलते हैं अपने साथ, अलग रुतबा लेके चलते हैं, जो एक टाइम पे रिचर्ड्स का शायद रहा होगा बैटिंग सर्किट में. इस समय वैसा ही कुछ ऑरा हेनरिक क्लासन का बना जा रहा है. स्पिन भी उतनी खतरनाक खेलते हैं, पेस भी उतना ही खतरनाक खेलते हैं, बैकफुट से सामने छक्का मारते हैं. तो आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो Yeah, गाइज, Nishan. दिस So वाज yeah, I think this was our 11 best players of the first week of IPL. Divyansh, do you want to add something else to this, or can we move to yeah, the next section? just to pick our top five. So I have already highlighted Heinrich Klaassen because I think he is the unanimous choice. Yeah. So if we go ahead,
who other four players would be your I pick think two. for the top We've five? decided for two batsmen, two bowlers, and two batsmen, two all rounders, and a bowler. So that Yeah, becomes our five-man team. So I think Heinrich Klaassen is decided. I would tilt towards going for Tilak Verma in apart from Virat Kohli and Nicholas Purans. I think I'll rather go for Tilak Verma as he's young and this has been a great first week for him. What do you think? Who should be my definitely. second for the I'll batsman? go with this choice. And for the all rounders, I have one name clear in my mind, Rachin Ravindra, and then we can maybe pick from the rest of the three. Yeah, I think in this specific category there is a lot of competition. So Rachin Rabindra has bowled not so much, and he has batted really well. But apart from them, I think Riyan Parag has also not bowled too much, but batted really well. But Sunil Narayan and Andre Russell both have bowled well, taken wickets, and also made a lot of runs up front. So Rachin Ravindra, I think Maulik's vote can also count. I think one Yeah. from Sunil Narayan and Andre Russell has to be in there. Yeah, that's what my opinion is. मौलिक आपको क्या लगता है इन चार ऑलराउंडर्स में से दो कौन से होने चाहिए I जो हम believe पिक करें? that Rachin Ravindra is one of the all-rounders to watch for, and Sunil Narayan. I'll pick Sunil Narayan because in the coming matches, he can be very useful bowling maybe, or so I'll pick Rachin Ravindra and Sunil Narayan. I think Sure. So Divyansh, you can yeah, make a pick. Sunil Narayan is our pick for this. And in the Yeah. bowlers, what do you think? I think just the sheer audacity and the sheer pace of this young kid, I'll have to go with Mayank Yadav. Absolutely. I think I'm very excited about him. मुस्तफिजुर ने 4 विकेट लिए, हर्षित राणा ने भी दोनों मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, एंड मयंक यादव ने बस एक ही गेम खेला है इस वीक में, तो आई होप कि मतलब हम लोग थोड़ा बायस ही हो रहे हैं इस अपने, बट जस्ट दैट उसने कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, कितनी तेज बॉलिंग करी है, सुपर एक्साइटेड फॉर मयंक यादव. Yeah, फास्ट बॉलर के पास कुछ हो ना हो, बट अगर वो फास्ट बॉलिंग कर दे तो हर हाँ. चीज बंदा भूल जाता है कि ठीक है, विकेट 3 ही लिए, 27 रन भी दिए अपने 4 ओवर में, बट सब कुछ भूल जाता है, केवल शेयर पेस के पीछे हर कोई दीवाना है. जब बैट्समैन हाँ. खेलता है और उसके सामने उसको बॉल दिखाई नहीं देती है, 5 सेकेंड 0.5 सेकेंड रिएक्शन टाइम हो और डेब्यू मैच हो, नो फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक्सपीरियंस हो, 20 लाख में बंदे को खरीदा गया है, पहला मैच है और क्या मजेदार बॉलिंग की है, क्या मजेदार बाउंसर मारे हैं. शिखर धवन जो कि सीजन्ड प्लेयर है, ही फेस्ड सच डिफिकल्टीज इन फ्रंट ऑफ या मयंक यादव, तो श्योरली मयंक यादव इज द पिक फॉर मी. या okay, so we are going ahead with these five, and with this, let's move to our next section uh, of comparing or of just giving our 2 minutes bites for the या upcoming week. So या starting with the first match of the next week, I think, which दिव्यांश is पहला मैच बहुत Mumbai. ही ज़्यादा एक्साइटिंग, या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है मंडे को, बिकॉज हम लोगों ने जब अपना प्रीव्यू करा था आईपीएल का इस सीज़न का, सो हम दोनों ने अपनी फर्स्ट और सेकंड टीम मुंबई और राजस्थान रखी थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. हम दोनों ने यहाँ पे Right. राजस्थान अपने पहले दोनों मैचेस जीत के आ रही है और मुंबई अपने पहले दोनों मैचेस हार के आ रही है. तो मंडे को आई थिंक राजस्थान वर्सेस मुंबई इज गोना बी अ बिग बिग मैच. बहुत मजेदार मैच होने वाला है मुंबई के लिए. ऑलरेडी ये मेरे हिसाब से मस्ट विन मैच होने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है. दिव्यांश, आप क्या बोलते हैं अबाउट मुंबई वर्सेस राजस्थान? Definitely, मेरा भी यही take होगा. It would be an interesting match to see because both teams are very talented, but
देखना ये होगा मुंबई अपना अ, अपनी जो स्ट्रीक चल रही है उनकी स्टार्टिंग 2 मैचेस हारने की, वो थर्ड में भी कंटिन्यू होगी या वो ब्रेक करके उनका इंजन अब इनफ गर्म हो चुका है कि अब वो they start winning the matches and moving towards the top 4. So that would be the thing to be Yeah. expected out of Mumbai in this match. What do you say, Maulik? Malik, yeah, Yeah, first two short current. matches were a shocker for Mumbai Indians, but now I hope कि they come back strong. और राजस्थान में अभी तक बटलर है जो नहीं हमने देखने को मिला है कि जो जो हमने लास्ट आईपीएल्स में बटलर को देखा कि एक एंड पे वो खड़े हो जाते थे और बस मैच जिता के ले जाते थे, तो उनका भी एक परफॉर्मेंस अवेटेड है अभी तक इस आईपीएल में। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में आई ऑल्सो बी वाचिंग जॉश बटलर कि वो कैसा अपनी लास्ट ईयर की आईपीएल फॉर्म को कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं, बट यस वेरी इंटरेस्टिंग मैच इट विल बी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। या Yeah. आई थिंक बटलर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यशस्वी जायसवाल अकेले एक लड़के के ऊपर इतना प्रेशर भी ठीक नहीं होता है, एंड आई थिंक बटलर नीड्स टू कम गुड फॉर आईपीएल. So this is gonna be a great match. I think a run fest in itself, क्योंकि वानखेड़े में मैच होगा तो ऑलरेडी बैटिंग फ्रेंडली पिच है और ये दोनों टीम के पास खतरनाक बैटिंग है. So yeah, I think advantage Mumbai because it's in their home, but all in all, I think this would be a great game. Yeah, Divyansh, over to you. Yeah, so moving on to the next match, again a cracker of a match on Tuesday, RCB versus Lucknow Super Giants. So the Bangalore boys would be at loggerheads in this match. KL Rahul versus Virat Didn't Kohli. RCB only just play LSG? अभी अभी एक ही दो दिन पहले ना आरसीबी का पहले भी तो एलएसजी से हुआ है मैच. Is it true? या No, no, no. It was RR versus LSG, and then this LSG versus Punjab. So this is the first time they are going ओके to ओके ओके. lock horns in this version of IPL. So या yeah, दैट वाज पंजाब हु लास्ट फेस्ड आरसीबी. या आई गॉट इट. या yeah, yeah. So the Bangalore boys would be at it, and यहाँ पे दोनों ही जो टीम्स हैं, मतलब एटलीस्ट द कैप्टन्स एंड द स्टार प्लेयर्स नो द ग्राउंड वेरी वेल. केएल राहुल यहीं पे खेले हैं most of his initial years, and he knows this ground in and out. So ज़्यादा एडवांटेज होगा नहीं आरसीबी के पास, एंड बिकॉज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी केएल राहुल knows it all about Chinnaswamy. But yeah, it would be a high scoring match definitely. Both sides are filled with power hitters, and the onus would be on the bowling. The one who will bowl better would win the match, in my opinion. And Yeah, Maulik. I would like to see Mayank Yadav bowling Virat Kohli at Yes, 156, 156, yes, 157. Because एक Virat likes to, you know, Virat likes the pace. He uses the pace of the या bowler very well. definitely. So या very very interesting match. या That that would be बस the यही एक litmus प्रॉब्लम test. है कि आरसीबी अपना होम मैच जीतती नहीं है Hmm. ज्यादातर. और अगर लखनऊ का बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छा निकला तो आरसीबी के लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है इस मैच में. बट या रियली एक्साइटिंग मैच because as we said कि RCB के लिए this already becomes a must win game if they want to qualify for the top 4 of the IPL. I think विराट कोहली के अलावा किसी और को अपना हैंड रेस करके जिम्मेदारी करना लेनी पड़ेगा। पड़ेगी इन दिस मैच में. It has to be one of the Indian players as well. I think रजत पाटीदार को कुछ भी करके इस मैच में अपनी पोजीशन जस्टिफाई करनी पड़ेगी, वरना टीम में उनकी जगह बनती दिख नहीं रही है. तो या बहुत सारा दारोमदार इंडियन बैट्समैन के ऊपर रहेगा if RCB want to win this game. Definitely. So this would be another exciting match. Moving on to the match on Wednesday, 3rd of April. Again, Delhi Capitals hosting KKR in their home, away from home, that is Vishakhapatnam.
So Delhi Capitals would look to have this advantage in their side, but I think on papers and also in terms of performance, KKR looks a better team in front of Delhi Capitals. So let's see who wins that battle. But I think if Michel Marsh fires, then I think Delhi Capitals have a good chance. But in terms of the bowling department, KKR has a much better, much balanced side, and they are also well equipped in terms of spin department as well. So advantage KKR for me in this match. Absolutely, absolutely. I have the same views that KKR has an advantage on in this match. Yeah, I think दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग होने वाला है बिकॉज इफ दे डोंट मैनेज टू विन एनी गेम्स दिस वीक देन ऑलरेडी टूर्नामेंट का 10% 20% खत्म होने तक ही दिल्ली वुड बी आउट ऑफ द कंटेंशन फ्रॉम टॉप 4. सो अभी दिल्ली का मैच सीएसके से है, उसके बाद दिल्ली का मैच केकेआर से होगा. बोथ ऑफ दीज टीम आर रैंक 1 and 2 राइट नाउ. तो दिल्ली को एटलीस्ट इन दोनों मैचेस में से कोई एक मैच तो जीतना ही है इफ दे वांट टू स्टे इन द रनिंग. एंड अगर दिल्ली इनमें से कोई भी एक मैच जीतेगा तो अगेन फिर इसका इंटरप्रिटेशन ये रहा होगा कि या तो मिचेल स्टार्क ने वो इनिंग खेली है जो इनिंग हम लोग चाहते हैं उनसे देखना, और जो वो एक्सपेक्ट भी करते हैं हम लोग, और वो केपेबल भी हैं उस इनिंग को खेलने के, या फिर वो उन्होंने नहीं खेली है, और या फिर रिकी भुई और अभिषेक पोरेल जैसे जो इंडियन कोर है वो स्टेप अप कर पा रहे हैं प्लेट पे या नहीं कर पा रहे हैं. अगर दिल्ली इस वीक के ख़त्म होने तक सारे के सारे मैचेस हारा हुआ है तो दे आर डाउन एंड आउट. दे वोंट हैव अ चांस टू मेक अ कमबैक इन दिस आईपीएल. So again, a really good match, a very crucial match at the beginning of IPL. Advantage KKR obviously because they are coming on the back of 2 wins, but Delhi needs to buckle up, pull up their socks, and get a win on board. Yeah, so moving on to the next match, Gujarat versus Punjab Kings on Thursday, that is 4th of April. Again on the Narendra Modi Stadium, home ground of Gujarat Titans. And I think this game is very evenly poised. Both teams are looking for consistency, and also both teams would be under pressure to get ahead with each other on the points table. And I think if the batting comes good for Gujarat Titans, they should be able to defend this on their home ground. So for me, advantage Gujarat just because of the home ground factor. What do you say, Malik? Yeah, both the teams are very strong teams. और गुजरात को अभी हार्दिक पांड्या ने स्विच कर दिया है, तो कैप्टेंसी भी जो है हमारे प्रिंस के हाथ में आ गई है. तो ही इज डूइंग अ रियली वंडरफुल कैप्टेंसी, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच. Yeah, I think Gujarat versus Punjab is going to be an interesting one. I would like to see what the extent of injury for Liam Livingston is. कितने टाइम के लिए वो बाहर होने वाले भी हैं या नहीं होने वाले हैं, और अगर वो हो रहे हैं तो उनकी जगह राइली रूसो ही आएंगे जैसा हम लोगों ने सोचा है, या फिर कोई अदर लेफ्ट फील्ड प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब. सो वील हैव टू सी दैट. I think Nishank, what do you think about Shubman Gill's captaincy? I think for Shubman Gill it's a burden right now. बहुत जल्दी आ गया है उनके करियर हम्म, में, इट्स माय हम्म. ओपिनियन, कैप्टनसी गुजरात की. इतनी इतनी कम एज और में कैप्टनसी हाँ करना, अपने से इतने हाँ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को कैप्टन करना, मतलब. और खासकर ये फ्रेंचाइजी भले 2 ही साल की हिस्ट्री रही हो लेकिन एक बार फाइनल जीते हैं, एक बार फाइनल में पहुंचे हैं. सो इट कैन बी कंसिडर्ड अ वेरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इन इट्स नेसेंट स्टेज. आई थिंक जब इनके पास केन विलियमसन का ऑप्शन था तो दे कुड हैव गिवन कैप्टनसी टू केन विलियमसन फॉर 1 year, एंड धीरे धीरे शुभमन गिल को थोड़ा ईज करना चाहिए था.
कैप्टनसी का इफेक्ट तो उनकी फॉर्म पे दिखेगा ही। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग जैसे पिछले साल इन्होंने 890 रन आईपीएल में ठोक दिए थे, आई डोंट थिंक that's gonna happen this year purely because of the captaincy pressure, but I'm still expecting कि शुभमन गिल बैटिंग में अच्छा करेंगे और इंडिया के फ्यूचर कैप्टन तो वो हैं ही शायद, क्योंकि ये जो नया लॉट आने वाला है जिसका पार्ट यशस्वी जायसवाल है, बाकी प्लेयर्स भी आएंगे, तो जैसे ध्रुव जुरेल आएंगे, तो इन सब का लीडर शायद शुभमन गिल ही उभर के निकलेंगे, बट या अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। Absolutely. या दिव्यांश। Yeah, so moving on to the last match of this discussion, the Friday's match, CSK having a match with Sunrisers Hyderabad on Hyderabad's home turf. So that will be another cracker of a match with the bowling experience and the wiliness of Mahendra Singh Dhoni, backing the Rituraj Gaikwad as captain. The tactics would they be able to match up with the tactics of Pat Cummins on their home ground? So the batting prowess versus the bowling, the quirky bowling side of Chennai. So that would be an interesting thing to see that matchup. How the Chennai bowling stacks up against the batting of Hyderabad, because if they are able to if they are able to restrict this batting side, I think they would be able to perform against all the other teams very well. So this would be a test for the bowling side of Chennai against Hyderabad's batting. So I think this is one of the rare occasions where I would give advantage Hyderabad because of their home turf and their batting form right now against CSK. What do you say, Malik? Yes, Divyansh, absolutely. This game is going to be a very interesting game. और हैदराबाद की जो बैटिंग परफॉर्मेंस चल रही है, मतलब दे आर स्कोरिंग लाइक एनीथिंग। तो अब उसके खिलाफ ऋतुराज की कैप्टेंसी कितना फ्रूटफुल रह पाती है, वो मैच के बाद ही पता लगेगा। बट ये मैच ऐसा है कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और एज यू राइटली सेड कि दिस इज वन ऑफ द रेयर मैच जहाँ पे ये इजीली कहना मुश्किल होगा कि सीएसके जीत जाएगी, क्योंकि हमेशा हम हर मैच में सीएसके को एक एडवांटेज ही देते हैं। बट ये एक मैच ऐसा होने वाला है कि बोथ टीम स्टैंड एन इक्वल चांस। दोनों ही टीम बहुत अच्छा कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स है। या आई थिंक साउथ की डार्बी है, हैदराबाद में मैच है, और देखना होगा कि सीएसके में से कौन सा प्लेयर है जो स्टेप अप करता है टू बीट हैदराबाद अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज क्लासन, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आज भी क्लासन का मैच है, और ये नेक्स्ट फ्राइडे भी क्लासन विल फेस सीएसके, और I don't see anyone stopping Klaasen right now. I think कि सीएसके के लिए भी बहुत मुश्किल होगा इस मैच में हैदराबाद को हराना, और हैदराबाद के लिए मैच एक्चुअली जीतना भी बहुत ज़रूरी है टू स्टेक देयर क्लेम दैट दे कैन हैव अ सीट एट द टेबल विद द बिग बॉयज। सो आई थिंक अगर हैदराबाद इस मैच में सीएसके को हराता है तो हैदराबाद के पास काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज़ का, बड़े मैचेस खेलने का कॉन्फिडेंस आएगा, which will put this tournament in a very good stead, और काफ़ी कंपटीशन बढ़ेगा आने वाली वीक्स में if Hyderabad beats CSK. So yeah, I think they are gonna do it. This is gonna be a really close game but a high scoring game, and I think Hyderabad will come out on top. So, with that, this podcast of ours comes to an end, and let's hope for another cracker of a week. And thank you so much, Maulik, for joining us, and thank you for giving us your valuable opinions. And it was a fun discussion. So, Same here, hoping to same see here, you man. again in the future. Thanks And for having me. thank you. Thank you. So this is us signing off. Do tune in next week also for these kinds of analysis and interesting discussions about IPL 2024. This is me signing off. Thank you. Thanks a lot. Have a good day. Bye bye. Bye, Bye. bye, cheers. Bye.